عبداللہ حمید گل صاحب، روز ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جی آج شاید یہ جنگ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے، آج یہ ختم ہو جائے، آج اس کی فتح کا اعلان کر دیں وہ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب ایرانی جو حملوں کی 51ویں لہر کا آغاز ہو گیا ہے، سعودی عرب میں مزید امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں کی بارش ہو گئی ہے، تو یہ معاملہ تو 12 دن سے تو آگے بڑھ کے 16 دن پہ پہنچ چکا ہے۔ مزید کتنا یہ بڑھ سکتا ہے، اور کیا کوئی سنسیئر ایفرٹ ہو رہی ہے کسی طرف سے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ تھوڑا سا آپ کی آواز میں شور ہے، بہرحال میں آپ کا جو سوال سمجھ پایا ہوں۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر کوشش تو جاری ہے مختلف ممالک اور خاص طور پہ پاکستان کی جانب سے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کر دیا جائے، لیکن دوسری جانب ایران موجود ہے جو کہتا ہے کہ ہماری عوام کا نقصان ہوا، شہادتیں ہوئیں، ہماری لیڈرشپ کو بے گناہ اسیسینیٹ کیا گیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا اور ہم پر ایک ناجائز حملہ کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو مرضی کی حکومتیں اور رجیم چینج کرنا، یہ میرے خیال میں سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج اگر ایران کا ہے تو کل برطانیہ میں کہیں گے کہ ہماری مرضی کی رجیم ہونی چاہیے، پھر پاکستان میں اپنی مرضی کی رجیم لانا چاہیں گے، تو یہ سلسلہ تو ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ دیکھیں نا، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے جس طرح سے بتایا جاتا ہے، تو گلوبل ولیج کے اندر اس قسم کے تحکمانہ رویے یہ قابل قبول نہیں ہوتے، نہ یہ جمہوریت کے عکاسی کرتے ہیں اور نہ یہ عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے خطے کے اندر یہ معاملہ پھیل رہا ہے، اور اب ایران نے کہا ہے کہ ہم جو یو اے ای کے پورٹس ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کریں گے، کیونکہ ایران کے سویلین پورٹس کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی وہاں سے انخلا کر لیں کیونکہ اب ہم نشانہ بنانے چلے ہیں۔ کیا یہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے، کیا اس سے اس کے اتحادی ممالک یا وہ ممالک جو بیچارے ان کو پیسے دیتے آئے تھے اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے، آج وہ ممالک امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے آج خمیازہ بھگت رہے ہیں؟ ایک تو یہ پہلو ہے، اس کا معاشی پہلو ہے، اس کے اندر پوری دنیا کا معیشت داؤ پہ لگ چکی ہے، اور خاص طور پہ اب جس طریقے سے ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے ممالک کے درمیان جس طرح اٹلی اور اسپین علیحدہ ہوئے ہیں اس سارے معاملے میں۔ جاپان نے، جو کہ ایک بہت بڑا ایلائی سمجھا جاتا ہے امریکہ کا، اس نے بھی اپنی وارشپس کو بھجوانے کے لیے کچھ نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے۔ اس سے تو بہت کچھ ثابت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے پہلی دفعہ ہے کہ جو ایران کے حوالے سے وار کمیٹی کے اندر نیتن یاہو خود موجود نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ روس کو لالی پاپ دینے کی ایک کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جناب ایران کے معاملے پہ کہیں روس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ روس نیوٹرلائز ہوگا۔ آپ دیکھیں تیل کے اوپر انہوں نے کنسیشنز دیے ہیں، اور اپنی جو ان کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی تھیں ان کے اندر کمی کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو تیل لینے کی اجازت دے دی گئی ہے روس سے۔ یہ تمام باتیں، اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، اور اس کو کچھ ایسے معاملات کرنے پڑ رہے ہیں جو شاید وہ عام حالات میں نہ کرتا۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ان کے جو اسکاٹ بیسنٹ ہیں جو وزیر خزانہ، وہ ایک دوران ٹیلی ویژن انٹرویو کے ان کو بلا لیا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام لا کے، یہ بالکل ویڈیوز موجود ہیں، اور اسکاٹ بیسنٹ جب واپس آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تو وہ پوچھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن وہ اسٹیمر کرنے لگتے ہیں، ہکلانے لگتے ہیں۔ ان کا جو انٹرویو ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جس ٹائم کے اوپر یہ بات کی گئی اسی ٹائم پہ نیتن یاہو کے مرنے کی بھی اطلاعات آ رہی تھیں۔ تو شاید، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ قیاس آرائی ہے یا کیا، لیکن یہ ایک امریکہ کے وزیر خزانہ ہوں۔ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ٹرمپ تو روز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو کھلوائیں گے، اس کو کلیئر بھی کریں گے، اور وہ وہاں پر بڑی بڑی کامیابیوں کے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ جی ان کی بحریہ جو ہے ایران کی وہ بھی ہم نے تباہ کر دی، بہت سی کشتیوں کو تباہ کر دیا ہم نے۔ لیکن اب ان کا بیان آیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے تیل لینے والے ممالک اس راستے کی سیکیورٹی خود یقینی بنائیں، یعنی کہ ٹرمپ نے کل کچھ اور بات کی تھی، آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو لوگ یہاں سے تیل لینا چاہتے ہیں آبنائے ہرمز سے، اس کی سیکیورٹی ہے وہ خود یقینی بنائیں۔ تو اس کا مطلب ہے امریکہ نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف بڑھ چکے ہیں۔
देखिए, अमेरिका के सदर बार बार झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ उनको बहुत महंगे पड़ जाएंगे और ये उनकी साख को बुरी तरीके से मुतासिर कर रहे हैं अमेरिका के अंदर और बैरून अमेरिका। और खास तौर पे उनका अपना मीडिया जो उनके गले पड़ गया है, उनका जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है CNN, जो एक इंटरनेशनल रिप्यूट का मालिक है। आप देखें कि किस तरीके से CNN ने मीनाब के स्कूल के वाक़े के ऊपर उनको झूठा करार दिया। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी नजर आ रही है कि अमेरिका के सदर यानी कि व्हाइट हाउस के अंदर और पेंटागन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है। व्हाइट हाउस कहता है कि मिनाब पर ईरान ने हमला किया है, पेंटागन कहता है ये हमला हमने किया है। व्हाइट हाउस ये कहता है कि हम ये रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि उनकी हुकूमत कहती है कि ये रिजीम चेंज करना अब उनके बस में नहीं रहा। इससे तो बड़ा वादे नजर आ रहा है कि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट और व्हाइट हाउस के अंदर एक बहुत बड़ा खला पैदा हो चुका है। दूसरी जानिब मीडिया उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, अपना मीडिया छोड़ देना, बाकी तो मीडिया दुनिया का छोड़ दें। अब जिस तरीके से इस आबनाए हुर्मुज की अगर आप बात कर लें तो आबनाए हुर्मुज को चौथे दिन इन्होंने जंग का ये कहा था कि हमने आबनाए हुर्मुज खोल दिया है और अब हमारे वॉरशिप्स तमाम एस्कॉर्ट करेंगे तमाम जहाजों को। भाई 116 जहाज रोजाना वहां से गुजरते हैं, आप 116 वॉरशिप्स लेके आएंगे। पहली बात यह है कि अमेरिका का कौन सा वॉरशिप इस टाइम पे आबनाए हुर्मुज के करीब आपको पाया जाता है? तो वो तो भाग गए। वो तो जो USS अब्राहम लिंकन था वो तो 2100 किलोमीटर दार जाके उसने अपनी जान बचाई और वो भी उसके ऊपर हमला करने की बातचीत आ चुकी है और उससे पहले उसकी वीडियोस भी जारी हो चुकी हैं। दूसरी जानिब जो इनका USS जेराल्ड फोर्ड था वो तो नजर ही नहीं आया कि वो कहाँ गया। और फिर जिस तरीके से तकरीबन अभी तक इस जंग के अंदर मोर और लेस $25 बिलियन का इनको नुकसान हो चुका है, जो इनके ऑफिशियल फिगर है। और जो इसका अगर आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और बाकी आप मामलात के अंदर देखें तो $60 बिलियन का अमेरिका को अभी तक नुकसान हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और फिर खास तौर पे जो अरब ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए तो मुसीबत का पहाड़ लेके आए हो, तुम तो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी करना दूर की बात है, तुम अपनी नहीं कर पाए। देखे ना ट्रंप का दूसरा झूठ ये है कि अभी जो कल की खबर थी उसके अंदर ये कहा गया कि जो 5 रिफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब में खड़े थे अमेरिका के वो तबाह कर दिए गए रियाद एयरपोर्ट के ऊपर। अब ये जो तैयारे तबाह हुए तो सदर ट्रंप ने ये नहीं कहा कि ये नहीं हुए, उन्होंने कहा ये तो 2-3 दिन पहले की खबर है। तो पहले की खबर उन्होंने बताई क्यों नहीं, छुपाई क्यों? उनको कौन मना कर रहा है ये छुपाने के लिए? तो 7 तैयारे अभी तक रिफ्यूलिंग उनके तबाह हो चुके हैं और ये मारे गए हैं। हर बार ये बातें करना कि जी ये तो एक कुदरती हादसा था, मिड एयर कोलिजन हो गया, वो तो जहाज खुद ब खुद गिर गए, फ्रेंडली फायर हो गया, ये बच्चों वाली बातें कोई और किसी से करे। डोनाल्ड ट्रंप को तो जरा थोड़ी सी ये ख्याल करना चाहिए कि वो एक ऐसे मुल्क के सदर हैं जहां झूठ बोलने वाले बिल क्लिंटन को बकायदा माफी मांगनी पड़ गई थी। सदर ट्रंप का मुझे मुस्तकबिल को ज्यादा अच्छा नहीं नजर आ रहा और अभी उन्होंने वो पश्तो में कहते हैं ना अखपल बंदोबस्त कह दिया, यानी कि अपने बंदोबस्त पे जो जहाज है वो जाए आबनाए हुर्मुज से। और भाई अभी अगर मामला इतना ही आ गया तो बेहतर है ट्रंप साहब हथियार रख दो। अगर बात कभी पादरियों को बुला के दुआ कराते हो, कभी लोगों को कहते हो कि तुम अपना बंदोबस्त कर लो, कभी आबनाए हुर्मुज को खुलवाने की बात करते हो और कभी आबनाए हुर्मुज के ऊपर तुम्हारा कोई इख्तियार चलता नहीं नजर आ रहा। हकीकत यह है कि ईरान का इख्तियार है इस टाइम पे आबनाए हुर्मुज पे और मुकम्मल इख्तियार है। साथ ही साथ ईरान की लीडरशिप ने जो पैगाम दिए हैं, अली लारेजानी साहब ने एक ट्वीट किया है जो कि रशियन जबान में है कि हम रशिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन चाहते हैं। दूसरी जानिब अब्बास इराक़ची ने जो फारसी के अंदर पैगाम दिया है अरब ममालिक को कि आप अपने सफीर और अपने जितने भी नुमाइंदे इजराइल से उनको वापस बुला लें तो हम आपको आबनाए हुर्मुज के ऊपर और आपके मोल मालिक के हवाले से रियायत दे देंगे। और तीसरा पैगाम डोनाल्ड ट्रंप अंग्रेजी में रोजाना धमकियां लगा रहे हैं और ये बताना, आप देखें ना जो आबनाए हुर्मुज से जितनी भी एक
एक आध शिप गुजरी है, उन्होंने अपने कॉल साइन सारे चाइनीज जबान के अंदर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि अब वो जो अंग्रेजी बतौर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसको चैलेंज हो रहा है चाइना की जानिब से। चाइना इस सारे मामले के अंदर एक अहम तरीन प्लेयर के तौर पर उभर के सामने आया है। और फिर जो ईरान है उसकी तरफ से जो लीडरशिप थी, अभी परसों जो उन्होंने कुछ रैली निकाली, उसमें तमाम की तमाम लीडरशिप बाहर निकली थी। जबकि दूसरी जानिब आप देखें कि कहीं आपको वो नजर नहीं आता, नेतन्याहू नहीं नजर आता, उसका भाई नहीं नजर आता, आपको उसके मोसाद का चीफ नजर नहीं आता। आखिर ये कहां गर्क हो गए हैं? ये भी तो कोई एक सवाल है ना। आखिर इतने दिन से ये बातचीत चल रही है, वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, पिछले 16 रोज में 120 स्कूलों को टारगेट किया गया है ईरान के, 43 लाख इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो दुनिया को वो जो एक कहते हैं ना कि इंसानी हुकूक की अलमबरदार दुनिया होती है, जो कि वहां बाहर बैठे बैठे बयान दाग देती है, तो उनको ये चीजें, ये जुल्म और सितम नजर नहीं आता? इतनी बेबस है दुनिया। देखें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। ये गजा के अंदर हमें दुनिया का पता नहीं चल गया। दुनिया अपनी जात और अपनी मफाद और अपनी नाक से आगे देखना नहीं चाहती। ये तहजीब के हैं, इनको आप बिल्कुल आप इनके वो ना सोचें कि जब गजा के अंदर जिस तरह से जेनोसाइड किया गया, उससे पहले रोहिंग्या के अंदर जो कुछ किया गया, उससे पहले जो अफगानिस्तान के अंदर किया गया, वो कोई सब दुनिया को मालूम नहीं था। सबको मालूम था इराक के अंदर 10 लाख लोगों को शहीद कर दिया गया और बाद में कहा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था ही कोई नहीं वहां। वाह जी वाह, ये तो आलम है। देखें, दुनिया वाला और ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट जो है ना वो खत्म हो गया है और अभी ये दुनिया एक नए अंदाज के अंदर चल रही है, जहां कहा यह जा रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे वो कुचल दे, अपनी मर्जी की रिजीम लेके आए, अपनी मर्जी का हर वो कानून करे। और किसी कानून, आलमी कवानीन, कौन सा कानून इस टाइम पे चल रहा है आप मुझे बताएं? यूनाइटेड नेशन की कोई मान रहा है? ये नौजुबिल्ला, ये एक डोनाल्ड ट्रंप एक फिरौन बन चुका है, ये नौजुबिल्ला खुदाई का दावेदार बन चुका है। ये कहता है कि जी मेरे से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है, अपनी फौज की ये तारीफें करता है। और बड़े देखे हैं इस जैसे जो आए और चले गए, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं इन जैसे लोगों से जो खुदाई के दावेदार थे और जो कहते थे कि दुनिया को वो तहस नहस कर देंगे। उनको हमने देख लिया है। देखें, मकसद यहाँ ये है कि ये दुनिया इनकी मर्जी से नहीं चलती है। अल्लाह ताला ने किसी को सामने खड़ा कर देता है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं कि ये एक सिर्फ इनको मिलिटरीली चैलेंज नहीं है, इनको स्ट्रेटेजिकली चैलेंज है, डिप्लोमेटिकली चैलेंज है, पॉलिटिकली चैलेंज है, इनको मुआशी सतह के ऊपर चैलेंज है। इनकी तो तमाम का तमाम इनकी सुपर पावर का स्टेटस ये आज अभी रूस के साथ शेयर करने के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो वो रूस की बात को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। उसके ऊपर तालियां, इनको पाकिस्तान की मदद पड़ रही है। पाकिस्तान से ये चाहते हैं कि किसी तरह किरदार अदा करे, लेकिन यहाँ दो शैतान हैं, एक भारत और एक इजराइल। ये बाज नहीं आएंगे। ये अमेरिका की ताकत को यहाँ रोंदने की पूरी कोशिश करेंगे अपने जाती मफाद और अपने मकासद को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान और ईरान अगर यहाँ खड़े हुए मैदान में तो ना इंडिया की दाल गलनी है ना इजराइल का मामला चलना है। इसलिए ये लोग अब इस चक्कर के अंदर हैं कि अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल करें। और अमेरिका दूसरी जानिब इतना बेबस हो गया है कि वो जाके अब भीख मांग रहा है। वो कहता है कि खुदा के लिए कोई नेटो शामिल हो जाए। कभी इजराइल के जो गुमाश्ते हैं, जो उनके दहशतगर्द और उनके एजेंट्स हैं, वो कभी जाके अरब ममालिक पे हमला करते हैं, तो कभी सऊदी अरब पे, तो कभी तुर्की के ऊपर। देखें, कमाल है, तुर्की ने क्या बात कही है, जो रजब तैयब अर्दोगान ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके बात की है, वो जरा सुनने वाली है। आज हमें भी मेरे ख्याल में एक हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गल्फ ममालिक अपनी अफादियत खो बैठे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी, एक क्राइसिस बिल्कुल आपने ठीक कहा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब।